ابھی ہم نے پڑھا ہے اعمال کی کتاب، رسولوں کے اعمال بھی اس کو کہا جاتا ہے اور روح القدس کے اعمال بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ یقینی طور پر یہ حوالہ ہم نے پہلے بھی سنا ہے اور اس کے اوپر میسج بھی ہو چکا ہے، لیکن خداوند خدا جو ہے وہ اپنے لوگوں کے لیے بے شمار ایسے راستے اور بے شمار ایسی باتیں اپنے ہی الفاظ میں سے رکھتا ہے، کیونکہ اس کی حکمت کا کوئی بھی ثانی نہیں ہے۔ جیسی اس کی حکمت ہے، نہ تو انسان اس کے برابر ہو سکتا ہے اور نہ کوئی معبود اس کے برابر ہو سکتا ہے۔ بہت سارے تاریخ دان اٹھے، بہت سارے سورمے اٹھے، بہت سارے لوگوں نے یہ جسارت کی کہ خداوند خدا کے قد تک پہنچا جائے، اس کی حکمت تک پہنچا جائے، اور میں جو ہوں ایسی حکمت کو ظاہر کروں اپنے کردار سے، اپنی باتوں سے، اپنے کاموں سے، کہ خداوند خدا جو ہے وہ سمجھے کہ میں جو ہوں وہ بہت بڑا ہوں۔ لیکن جو حکمت اوپر سے آتی ہے وہ لاسانی ہے، وہ لافانی ہے، اور دوسری جو دنیا کی حکمت ہے، دنیا کی جو عقل اور فہم اور حکمت ہے، خدا نے اس کو بیوقوفی ٹھہرایا ہے۔ یقینی طور پر خدا اپنے لوگوں سے بات کرتا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے اعمال کی کتاب میں سے 16ویں باب کی 25ویں آیت سے ہم نے تلاوت سنی ہے۔ اب یہاں پر ایک قید کا ماحول ہے۔ اب یہاں پر پولس اور سیلاس جو ہیں وہ بیڑیوں میں، ان کے پاؤں کاٹ میں جو ہے وہ ڈھونکے ہوئے ہیں، ان کو پکڑ لیا گیا ہے۔ لیکن وجہ کیا ہوئی ہے کہ یہاں پر ان کو پکڑ لیا گیا؟ اب تھوڑی سی آیات اگر ہم اوپر جائیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ ایک شخص تھا، اس نے ایک ایسی عورت کو رکھا ہوا تھا جو غیب بین روح رکھتی تھی۔ اس کے اندر غیب بین روح تھی، اور وہ کیا کرتی تھی کہ وہ لوگوں کے حالات بتاتی، وہ لوگوں کے بارے میں عجیب باتیں بتا کر یا ان کے بارے میں بتا کر جو ہے وہ پیسہ کمانے کا ذریعہ بن گئی تھی اپنے مالکوں کے لیے۔ اب یہاں پر کیا ہوا کہ جب انہوں نے پولس اور سیلاس کو دیکھا تو وہاں پر جو ہے وہ عورت جو تھی جس میں غیب بین روح تھی وہ چلانے لگی، وہ ہر روز اسی طرح کرتی کہ یہ خدا تعالیٰ کے بندے ہیں، یہ نجات کا راستہ بتانے آئے ہیں۔ اب یہاں پر تھوڑا سا ٹھہر کر اس بات کو سمجھیے گا کہ یہ کوئی بری بات نہیں تھی، ایسے ہی نہیں، وہ تو واقعی میں ہی خداوند یسوع مسیح کی نجات کا پرچار کر رہے تھے، وہ تو خداوند خدا کی باتوں کو یاد دلا رہے تھے، لوگوں کی زندگیوں کے لیے کلام سنا رہے تھے، ان کو بچانے کے لیے خدمت کر رہے تھے۔ لیکن اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کیونکہ وہ جو بات بیان کر رہی تھی اس کے باعث اس کے مالک ارننگ کر رہے تھے، اس کے مالک پیسہ لے رہے تھے، اس کے مالک کمائی کر رہے تھے۔ یعنی یہاں پر زر دوستی کی بات آ گئی، یہاں پر پیسے کمانے کی بات آ گئی، تو خداوند کا کلام جو ہے وہ اس بات کو کہتا ہے کہ زر کی دوستی جو ہے ہر مصیبت کی جڑ ہے۔ خداوند خدا کہتا ہے کہ جو کوئی دولت مند جو بننے کی کوشش میں رہتا ہے وہ کنگال ہو جائے گا۔ خداوند خدا ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو خداوند کے کلام کو یوز کرتے ہیں اور خداوند کے کلام کو استعمال کر کے اس سے پیسے کمانے کی کوشش کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کمانا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ ہم اپنے ارد گرد دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جو کلام مقدس کو استعمال کر کے اس کے اوپر جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ تصویریں لے کر اور طرح طرح کی ایکٹیویٹیز جو ہوتی بھی نہیں ہے اور جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں، وہاں پر ان چیزوں کو لے کر ارننگ شروع کر دی جاتی ہے۔ آپ اگر جھوٹ کی بات کریں یا ہم اس بارے میں بات کریں تو یہ ایک اور خیال باغ عدل سے ہمارے ذہن میں آئے گا کہ کلام کو یوز کیا گیا اپنے مقصد کے لیے۔ کلام مقدس کو یوز کیا لوسیفر جو پہلے فرشتہ تھا اس کے بعد ابلیس بنا، اور یوز کیا باغ عدن میں کہ جو کلام مقدس جو حکم خداوند خدا نے دیا اسی کو جو ہے ایک اور رنگ میں رنگ کے پوری نسل انسانی کو موت کے منہ میں لے آیا۔ آج جو ہے وہ تاریکی میں لے آیا، موت ایسی موت یعنی جو تاریکی کی موت ہے، جس میں تاریکی ہے، جس میں کوئی شخص، ہم نے پچھلے دنوں سیکھا تھا کہ کوئی شخص زندگی جو ہے وہ نہیں جی سکتا۔ کوئی تصور کر سکتا ہے جی کہ اندھیرا رہے یا پوری لائٹ بھی نہ ہو تو زندگی کیا ہو جاتی ہے؟ مفلوج ہو جاتی ہے، زندگی کیا ہو جاتی ہے؟ تھم جاتی ہے۔
वो मौत का एक हिसाब से समा होता है। तो यहाँ पर भी क्या है कि यहाँ पर जब ये बात हुई है तो उनको पकड़वा दिया गया, और जब पकड़वा दिया गया तो फिर वहाँ पर ये तमाम बातें होती कि उनको कैद में, उनको बैंच लगवाए गए, उसके बाद उनको कैद में डाल दिया गया। अब कैद में डाला है, उसकी उनकी पाँव जो है वो काट में ठोक दिए गए, हाथ भी बंधे हैं, अब वो कैद में है। अब हालात जो है वो बद से बदतर होते चले जा रहे हैं, बैंच लगे हुए हैं, दर्द भी है, तकलीफ भी है, परेशानी भी है, मुसीबत भी है, हालात खराब हो चुके हैं, लोग मुखालिफ हो चुके हैं, सब लोग जो है वो कैद की हालत में है। जैसे उसने क्या किया कि कलाम को यूज किया और मौत की कैद में जो है शैतान ने उनको जकड़ लिया। शैतान ने आदम और कुल आदमजात को क्या किया, मौत के शिकंजे में जकड़ लिया। अब यहाँ पर माहौल ऐसा बन चुका है, यहाँ पर ये कौन सा वक्त है जी जब ये 25वीं आयत पढ़ी गई? तो क्या जी? आधी रात का। रात क्या होती है? रात किसको जाहिर करते हैं? तारीकी को जाहिर किया जाता है। रात तारीकी की है। अब देखें कि मैंने पहले बताया कि रात तारीकी है। जब ये मौत का सिलसिला चला तो इंसान, नस्ल इंसानी तारीकी में सफर कर रही थी, नस्ल इंसानी तारीकी में जिंदगी बसर कर रही थी। वो रात के अंदर जो है वो चल रही थी, उनके लिए रोशनी की कोई बात नहीं थी। खुदावंद जगह ब जगह उनको वो कलाम मुकद्दस देता जरूर रहा, नबी आए, लेकिन फिर भी उन्होंने उन चीज़ों को रद्द किया और तारीकी में चलना ज़्यादा पसंद किया। लेकिन जो खुदावंद खुदा के लोग होते हैं, जो खुदावंद खुदा यीशु मसीह के शागिर्द होते हैं, वो तारीकी में भी हो तो वहाँ भी नूर बनकर चमकते हैं। हालेलुया, वहां पर भी नूर बनकर चमकते हैं। तो यहाँ पर खुदावंद खुदा की जात जो है वो यहाँ पर बयान करना चाहती है इस वाक्य के वसीले से कि आधी रात हो चुकी है। जो ईमानदार हैं वो रात भी हो, कैसे भी हालात हो, वो कभी अपनी जिंदगी का मकसद नहीं भूलते, वो कभी अपनी जिंदगी का। लेकिन कौन नहीं भूलते? कौन? जो यीशु मसीह के शागिर्द हैं, जो यीशु मसीह की तालीम पर चलते हैं, उनके पास हिम्मत, ताकत और जोर होता है। और फिर यहाँ पर अगर हम इफसियों की कलीसिया के नाम खत को पढ़ें 5वें बाब और 8वीं आयत में, वहाँ पर लिखा है कि बस नूर के फर्जंदों की तरह चलो। कैसे जी? नूर के फर्जंदों की तरह। नूर का काम क्या होता है? तारीकी को दूर करना। अब यहाँ पर तारीकी छाई हुई है, लेकिन वहां पर ईमानदार की जिंदगी, यीशु के शागिर्द जो कलाम पर अमल करते, वो अपनी जिंदगी को पहचानते। वो मैं क्यों कह रहा हूं, मैं इसके बारे में भी बताऊंगा कि ईमानदार जो है वो दूसरे लोग भी, अब देखें कि दूसरे लोग भी तारीकी में है वहां पर। अब यहाँ पर कि जो वहां पर पहरा दे रहा है वो भी तारीकी में है, आधी रात है, कैदी भी तारीकी में है, लेकिन पलूस और सिलास वहां पर क्या कर रहे हैं? दुआ कर रहे हैं। हालेलुया, दुआ कर रहे हैं। अब ये याद रखिएगा कि अब वो क्या है? तारीकी में है, लेकिन वो अपनी जिंदगी का मकसद नहीं भूलते। कभी ईमानदार हालात को देखकर दुआ करना बंद नहीं करता। हम क्या करते हैं? हमारे ऊपर हालात का जोर आता है, हमारे ऊपर जो है वो कोई भी मुसीबत आ जाती, कोई परेशानी आ जाती, हमारे घर के हालात खराब हो जाते हैं, या बच्चों की वजह से कोई परेशानी आ गई, या माली परेशानी आ गई, तो हम क्या करते हैं? हम दुआ करनी छोड़ देते हैं। हम देखें कि उनके पाँव जो हैं वो भी बंधे हुए हैं, हाथ भी हैं, कैद में हैं, बैंत पड़े हैं, लेकिन वो दुआ करनी नहीं भूलते। ये होते हैं सच्चे यीशु के शागिर्द, ये होते हैं सच्चे ईमानदार जो किसी भी हालात में डोलते नहीं हैं, बल्कि दुआ करते हैं। और जब वो दुआ कर रहे हैं तो फिर वहां पर आगे एक और बात आती है कि वो वहां पर क्या कर रहे थे? खुदा की हम्द के गीत गा रहे थे। क्या कर रहे थे जी? मेरे अजीजों, जब घर में या जिंदगी में तारीकी आ जाए तो सच्चे ईमानदार की तरह दुआ और खुदा की हम्द करना शुरू कर दे। हम्द क्या है? मैंने पिछले दिनों मैसेज दिया था, हम्द क्या है? हम्द करना क्या है? यसाया नबी के सहीफे में 43वें बाब उसकी 21वीं आयत में ये लिखा है कि ये हमारी जिंदगियों का मकसद है। मैंने इन लोगों को इसलिए बनाया कि ये मेरी हम्द करें। ये मेरी क्या करें जी?
हमद करें। अब यहाँ पर मैंने पहले बताया कि अपनी जिंदगी का मकसद ना भूलें। हमारी जिंदगी का मकसद दुआ और खुदा की हमद के गीत गाना है, उसके कलाम पर चलना है, उसकी शागिर्दियत में रहना है, उसकी तालीम में मगन रहना है, हालात चाहे कैसे भी हो। लेकिन यहाँ पर वो अपनी जिंदगी का मकसद नहीं भूलते। हमारी ख्वाहिशें घेर लेती हैं, हमें काम घेर लेते हैं, हमें परेशानियां घेर लेती हैं और हम खुदा के मकसद और हमारे बनाए जाने के मकसद से हट जाते हैं। हम और मर्जियों में पड़ जाते, हम और ख्वाहिशों में पड़ जाते, हम और परेशानियों में पड़ जाते और खुदा को जो है वो पीछे छोड़ जाते हैं। और ये जो छोड़ना है, दुआ ना करना और उसकी हमद ना करना, ये पता किसको बयान करता है कि खुदावंद तू ऐसा नहीं कर सकता कि मेरे हालात बदल जाए। एक बड़ी अच्छी बात की गई कि जो दुआ नहीं करता वो मगरूर है, जो दुआ नहीं करता वो मगरूर है, तकब्बुर में है, क्योंकि वो ये कहता है, वो बताने की कोशिश में है कि खुदावंद मुझे तेरी जरूरत नहीं है। दुआ किसकी होती है? मदद मांगने की, उसके साथ जुड़े रहने की। दुआ जो है वो एक रिश्ता भी है। दुआ क्या जी? एक तो किसी भी हालात में हमारे रिश्ते जो है वो खराब होते हैं। घर च जिन्नी मर्जी परेशानी होवे, असीं आपस में लड़ाई पाउने आ। कई दूर जिहड़ा बैठा हुंदा है कि नहीं यार वो भैन कहती हुंदी है या भरा कहता हुंदा है कि यार तुसीं ते फोन भी नहीं करदे। हम हद वसी कोशिश करते हैं कि रिश्ते कायम रहें। तो मेरे अजीज़ों, हालात को अपने ऊपर हैवी ना होने दें। खुदावंद के साथ रिश्ता कायम रखें, खुदावंद के साथ जुड़े रहें, खुदावंद की हमद करते रहें। लिखा है कि जब तुम खुशी करते हो, खुशी में क्या करो? मज़ामीर गाओ, गीत गाओ। अब देखें कि हालात कैसे हैं, लेकिन खुदावंद के बंदे खुशी में, खुदा के बंदे खुश हैं। और खुदावंद के कलाम में क्या लिखा है? मैं कहता हूँ खुश रहो, फिर कहता हूँ खुश रहो। अब देखें कि वो मुसीबत परेशानी में भी खुश है, कैद में भी खुश है। क्यों? क्योंकि वो गीत गा रहे हैं, वो हमद कर रहे हैं, वो दुआ कर रहे हैं। तो फिर क्या है? वो इस बात को जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था, जब तुम मेरी वजह से सताए जाओ, खुशी करना और शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा बहुत बड़ा है। आसमान पर क्या जी? अजर जो है बहुत बड़ा है। तो मेरे अजीजों, इस चीज को याद रखें कि जो यीशु का शागिर्द है, जो ईमानदार है, उसकी जिंदगी में हालात कोई मायने नहीं रखते। अब देखें वो कैद में है और लिखा है कैदी सुन रहे थे आपकी जिंदगी से, आपके गीत गाने से, आपकी दुआओं से। दूसरे लोग जो सुनते हैं वो भी आजाद हो सकते हैं। हालेलुया। वो भी जकड़े हुए होंगे, वो भी अगर परेशानी में होंगे, उनके घर में मुसीबत होगी, तो आपकी दुआ और आपके गीत गाने के सबब से, आपकी जिंदगी के सबब से वो भी रिहाई पाएंगे। हालेलुया। लेकिन कौन होगा जिसकी दुआ से हम रिहाई पाएंगे? यीशु मसीह के शागिर्दों के, जेड़े आप शागिर्द बनाना पसंद करते हैं ना, जेड़े आप मोतबर बनना पसंद करते हैं, जेड़े आप ही जो वन मैन शो की बात करते हैं कि जी मैं कर सकता हूं या मैं दूसरों पर हुक्म चला सकता हूं, तो ये हुक्म चलाना बड़ी बात नहीं होती। खुदा इस बात से जो है वो राजी नहीं है। यहाँ पर तो देखें कि उनके पास बरकत है, उनके पास वो शागिर्द है, उनके पास दुआ की बरकत भी है, गीत गाने और हमद करने की भी बरकत है, वो तमाम बातों में मौजूद भी कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने फख्र नहीं किया, उन्होंने फख्र नहीं किया, बल्कि दूसरों की जिंदगी बचाई। हालेलुया। तो हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? खुदा जो है वो अपने लोगों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। पलूस रसूल कहते हैं असी तंगियां च भी रहने आ, परेशानियां च भी रहने आ, असी दबे हुए आ, हमें मारा जाता है, हम मौत के मुंह में रहते हैं, लेकिन फिर भी मशहूर है। हालेलुया। वो जलाल है खुदा का, उनकी जिंदगियों से जाहिर होता है। वैसे ही खुदावंद हमें कहता है कि आपके और मेरे बदन से क्या हो? उसके नाम को जलाल मिले। जब ये चीजें हमारे अंदर होंगी तो हम दूसरों के लिए भी बाइस से बरकत होगी। हालेलुया। तो यहाँ पर देखें वो कैदी सुन रहे हैं,
کہ یکایک भूचाल, बड़ा भूचाल आया, खुदावंद की कुदरत जाहिर होगी जब आप दुआ करेंगे, आप हमदो सना करेंगे। आपकी बेड़ियां जो हैं वो ज़रूर हैं कि इंसान के लिहाज से बड़ी मजबूत हैं, लेकिन खुदावंद की कुदरत के सामने ठहर नहीं सकती। देखिए, इंसान ने बड़ा जोर लगाया उनको कैद में रखने के लिए, बड़ा जोर लगाया। जब यीशु मसीह बोलते थे तो उनके शागिर्द खामोशी से सुनते थे। क्या जी? खामोशी से। उनको पता था कि ये बातें जिंदगी की बातें हैं। उसके शागिर्द कहते हैं, ऐ उस्ताद, हम किसके पास जाएं? जिंदगी की बातें तो तेरे पास है। हालेलुया। तो किसके पास है जिंदगी की बातें? किसके पास? तो फिर किसके पास आना चाहिए? किसकी सुननी चाहिए? अगर जिंदगी चाहते हैं तो उसकी बातों को सुने। अब कुदरत जाहिर हुई है मेरे अजीजों, जो यीशु के ईमानदार या यीशु के शागिर्द हैं, खुदा के ईमानदार हैं, वो हालात से परेशान ना हो। आप अपनी ज़िंदगी के मकसद में मगन रहें, आप दुआ करते रहें, खुदा के साथ रिश्ता जोड़े रखें। आप खुदा के साथ हमदो सना के साथ अपनी ज़िंदगी का मकसद जाहिर करते रहें, अपने बदनों से जलाल जो है वो जाहिर करते रहें, दूसरी की ज़िंदगियों को फैज़-ए-आब करते रहें कलाम मुक़द्दस से, तो आपके हालात बदलने में खुदा की ज़ात कादिर है। यहाँ पर आप कैद में भी होंगे तो वहाँ पर कुदरत खुदा जो है वो जाहिर करके आपके पाँव की बेड़ियों को भी खोल देगा। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, कभी भी हालात की वजह से परेशान ना हो, लेकिन हालात उनके लिए बदलते हैं जो यीशु के शागिर्द हैं, जो ईमानदार हैं। यहाँ पर देखें कि बड़ा भूचाल आया। अब यहाँ देखें, उनकी भी खुली है और सुनने वालों की भी खुली है, जिनके लिए उन्होंने दुआ की है, जिनके लिए हम उसको कह सकते हैं कि हमदो सना के गीत गाएं। यहाँ तक कि कैद खाना की नींव हिल गई। क्या जी? नींव हिल गई। तो मेरे अजीजों, अगर आप या मैं ईमानदार हैं, अगर हम यीशु के शागिर्द हैं, अगर हमारा रिश्ता खुदा के साथ जुड़ा हुआ है, अगर हम दुआ करते हैं, अपनी जिंदगी का मकसद खुदा को बनाया है, अगर हम हम्द कर रहे हैं, तो मेरे अजीजों, आपकी भी मुश्किल आसान हो सकती है और दूसरों की भी हो सकती है। अब यहाँ पर देखें कि गुनाह की शक्ल में अगर इंसान आ चुका था, अगर गुनाह की शक्ल में ढल चुका था, अगर उसकी जिंदगी गुनाह में जो है वो बड़े बड़े सड़ रही और गल रही थी, लेकिन खुदा की जात यीशु अल मसीह ने क्या किया कि गुनाह की और उस कैद की और शैतान की नींव को हिला दिया। यहां पर क्या हुआ जी? कैद खाने की नींव हिल गई है। आप मसीह में बने रहें, खुदावंद की कुदरत आपकी जिंदगी से मुसीबतों परेशानियों की नींव को हिला देगी, जड़ से खत्म कर देगी। लेकिन ये तब होगा जब हम इस पैटर्न के मुताबिक अपनी जिंदगी को जिएंगे, खुदा की मकसद के मुताबिक जिंदगी जिएंगे और खुदा के साथ दुआ में कायम रहेंगे। और लिखा है, और नींव हिल गई और उसी दम सब दरवाजे खुल गए। यीशु मसीह ने अपनी जान देकर जो है वो मौत के दरवाजों को खोल दिया और उसके ऊपर फतह पादी और हमेशा की जिंदगी का दरवाजा खोल दिया। हालेलुया। मौत जो दरवाजा बंद करके बैठी थी, उसने हमें रोक रखा था, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने उसको खोल के हमेशा की जिंदगी हमें दे दी। हालेलुया। तो यहाँ पर एक ये चीज और दूसरी चीज, चंद बातें हैं, इसको हम आगे नहीं लेकर जाएंगे। चंद बातें हैं यहाँ पर, अगर मौत का जो है वो बंधन तोड़ा गया है, तो मेरे अजीजों, आपके लिए तरक्की के रास्ते भी खुल जाएंगे। हालेलुया। जो कारोबार में रुकावटें बन चुकी हैं, जो कारोबारी लिहाज से आपके पाँव में बेड़ियां पड़ चुकी हैं, बेरोजगारी है, खुदा की हमद और दुआ करें, खुदावंद वो बेड़ियां तोड़ने में कादिर है और आपको खुदावंद अच्छी नौकरी देगा। हालेलुया। तो फिर इसके बाद अगर शैतान ने आपके पाँव को रोक रखा है, आपके चाल चलन को खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं होने दे रहा, आपको चलने में दुश्वारी आ रही है, आपकी रुकावटें आ रही हैं, तो खुदावंद के हुजूर दुआ और गीत और हमदो सना करें। खुदावंद वो भी बेड़ियों को तोड़ने में कादिर है। आपके हाथों की जो हथकड़ियां हैं वो भी खुल जाएंगी,
आपके पाँव की बेड़ियां वो भी जो है वो खुल जाएंगी। काठ में जितनी भी जबरदस्त काठ क्यों नहीं है, उसमें ठोक दिया जाए, यीशु की हमद करें, खुदा से दुआ करें, और यकीनी तौर पर वो अपनी कुदरत को जाहिर करेगा और सब बंद दरवाजे खोल दिए जाएंगे और आपके पाँव की बेड़ियां जो हैं वो टूट जाएंगी। आपको चलने में परेशानी नहीं होगी। खुदावन का पाकरू जब आता है तो बंधन क्या हो जाते हैं जी? खुल जाते हैं। बंधन खुलते और बीमारियां खत्म होती और रुकावटें टूट जाती हैं। पाकरू को मौका दें, उसको अपने आप का और अपनी जिंदगी का इख्तियार दे दें, अपनी जिंदगी को खुदा के लिए जीना सीखें। सबकी बेड़ियां खुल गई। किसकी जी? सबकी। एक सवाल, हम लोग कितने लोगों के लिए बाइस बरकत होंगे? कभी हम अपनी जिंदगी के बारे में सोचें। हम यीशु के शागिर्द हैं, है ना? हाथ खड़ा करो फिर। हैं जी शागिर्द? उसकी तालीम पर अमल करने वाले जिन्हें करते हैं, जो करते हैं यकीनी तौर पर, और जो करते हैं, आपकी जिंदगी से कितने लोगों ने बरकत पाई है? अभी हमें सोचने की जरूरत है। हमें सोचने की जरूरत है। हाथ नीचे करने की। हमारी कुर्बत के बायस, हमारे नजदीकी के बायस, हमारे उसके साथ जुड़ने के बायस मियाँ बीवी भी सोच सकते हैं, दोस्त अहबाब भी सोच सकते हैं। एक बेटा अपने पूरे घराने के लिए सोच सकता है अगर वो यीशु का शागिर्द है, अगर वो तालीम पर चलता है, दुआ करता है, कलाम सुनता है। तो लिखा है सबकी बेड़ियां खुल गई। मेरे अजीजों, एक यीशु का शागिर्द जो है वो दूसरों की बेड़ियों को भी खोलने में कादिर है। हालेलुया। खोलता यीशु मसीह है, खोलता पाकरू ही है, खोलता खुदा ही है, लेकिन वसीला हम हो सकते हैं। कितने लोग खुदावंद के घर च लेके आउंदे हैं दूसरे को? वेरी गुड। खुदावंद आपको बरकत दे। अपना दैना हाथ उत्ते करना है, कहना है शाबाश शाबाश, अपने आप में शाबाश देनी, शाबाश। खुदावंद आपको बरकत दे। अब यहाँ पर देखें, और दरोगा जाग उठा और कैद खाने के दरवाजे खुले, देखकर समझा कि कैदी। अब देखें, अपने लोगों की, आखिरी बात, अपने लोगों के लिए तो हम बाइस बरकत हैं, गैर कौमों के लिए भी बाइस बरकत है। हालेलुया। हमारी जिंदगी से, हमारी हमदो सना और हमारी जो मकसद है जिंदगी का, दुआ और गीत गाना और खुदा की हमद करना और अपने बदनों से उसके नाम को जलाल देना, इसके बायस यहाँ तक कि हमारे साथ वाले, हमारे घराने, हमारे बहन भाई, हमारी बेटियाँ और हमारे जो मियाँ बीवी है खासकर, वो भी, क्योंकि मियाँ बीवी जो रिश्ता है वो ये याद रखेगा, ये कलीसिया का और यीशु का रिश्ता है। वो सबसे पहले अटैक इसी पर करता है। ये वो रिश्ता है, जब ये उसने खराब कर दिया तो फिर दोनों की जिंदगी खराब हुई, आगे आने वाली नस्ल की जिंदगी खराब हुई, फिर नस्लों तक ये जिंदगियां खराब हो जाती हैं। तो ये माँ प्यो के विच रौला बन जाए तो बच्चियां दे भी काम खराब, जिहड़े है ने उत्थे रिश्तेदार उन्हां नाल भी काम खराब, बहुत सारी बातें हैं। तो यहाँ पर जो है गैर कौमों के लिए भी जो है हमारी जिंदगी बाइस से बरकत होगी। अगर वो यीशु पर ईमान ले आते हैं आपकी वजह से, तो देखिए कितनी बरकत के अवतार होंगे, आपको किस कदर बरकत मिलेगी। मेरे अजीजों, यीशु मसीह के शागिर्द बनना सीखें। अगर हम हैं तो उसमें और बढ़ें, अगर नहीं है तो आज अपने आप को अधीन कीजिएगा। आज अब यीशु मसीह को कबूल कर लीजिएगा। आज जो है उसकी तालीम पर अमल करने के लिए अहद कीजिएगा। रोज़ों के दिन चल रहे हैं, इन रोज़ों में आप पूरे दिल से खुदावंद खुदा के शागिर्द बनने के लिए अपने आप को जो है उसके सामने ला सकते हैं, उसके कदमों में ला सकते हैं। तो फिर देखें आपकी ज़िंदगी, आपकी एक ज़िंदगी के बायस कितनी जानें जो है वो बच सकती हैं। आपकी भी जो है वो मुसीबतें परेशानियां दूर होंगी और दूसरे लोगों की, यहाँ तक कि गैर कौमों की भी। तो मेरे अजीज़ों, खुदावंद खुदा को अपना महवर बनाए, खुदावंद खुदा को यीशु मसीह को अपना उस्ताद बनाए, पाकरू को उस्ताद बनाए, ताकि हम जो है वो अच्छे तरीके से उसके शागिर्द बन सकें। खुदावंद इस मुकद्दस कलाम की वसीला से हम सबको बरकत दे।
मसीह के शागिर्द हैं? क्या उसकी तालीम से फैज़याब हो रहे हैं? क्या उसकी तालीम हमारे अंदर काम करती है? क्या हमने पूरे तौर पर उसको उस्ताद माना है? अगर आज हम यीशु मसीह की तालीम को, उसकी शागिर्दियत को नहीं अपनाते तो हमारी पीढ़ियां नहीं खुलेंगी, हमारी जिंदगी कैद में गुजरेगी। लेकिन मेरे अजीजों, पलूस और सिलास उसकी हमद करते, गीत गाते और दुआ करते, जिसके बायस बहुत सारी जिंदगियां फैजाब हुई, उनकी बेड़ियां भी खुल गई और खुदा सुनने वालों की भी खुल गई। बेशक वो ऐसा करने में काबिल है। अपने आप को उसके शागिर्द होने के लिए उसके कदमों में ले आए, ताकि हम जो हैं अपनी जिंदगियों से उसके नाम को जलाल दे सकें। हम अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी और गैर कौम के लिए भी बाइस से बरकत हो सके। उसके शागिर्द किसी भी हालात से परेशान नहीं होते, मुसीबतों से परेशान नहीं होते, दुखों से परेशान नहीं होते, बल्कि वो उस पर गालिब आ जाते हैं। और जब गालिब आ जाते हैं तो यीशु मसीह तमाम बेड़ियों को तोड़ देता है, बाकरू आ जाता है, कुदरत जाहिर होती है और तमाम बेड़ियां यीशु के नाम से टूट जाती हैं। तेरी शुक्रगुजारी खुदा कि तू हमें संभालता है। तेरी शुक्रगुजार है आज के कलाम मुक़द्दस के लिए, तेरी बातों के लिए, तेरे लोगों के लिए, जितने लोगों ने तेरे कलाम मुक़द्दस को सुना, तेरी बातों को जाना, आज वो तेरे सामने हैं, वो शागिर्द होने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, वो तेरे खुदावंद कलाम को सीखने के लिए मौजूद हैं। इनकी बड़ी मदद करना, हमारे साथ होना। खुदा आज का कलाम 100 गुना पल है, बड़ी मदद करे खुदा। यीशु मसीह के जलाली और कादर नाम में मांगते हैं, आमीन।